ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് കരിദിനമാണ്. പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ പാർലമെന്റിൽ ഭൂകമ്പം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പോലും തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് കടന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇന്ന് പാർലമെന്റ് സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും കണ്ടു. സ്പീക്കർ ഇരിപ്പുറപ്പിക്കും മുൻപ് തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യം വിളികളും പ്രതിഷേധവും കൊണ്ട് കലുഷിതമായിരുന്നു സഭ. അവിടം കൊണ്ടും തീർന്നില്ല. പാർലമെന്റ് കവാടത്തിന് പുറത്ത് കറുത്ത വസ്ത്രമണിഞ്ഞെത്തിയ പ്രതിപക്ഷം യുദ്ധക്കളമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു അവിടം. വിദ്യാഭ്യാസ ബജറ്റ് വെറും 1.4 ലക്ഷം കോടി നൽകി. അപ്പുറത്ത് അദാനി, അംബാനി തുടങ്ങിയ വ്യവസായികളുടെ 16 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളുന്ന നടപടിക്കെതിരെ വാളെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച പ്രിയങ്കയും ഇന്ന് രാജ്യം കണ്ടു. നീറ്റ് ചോർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തെ ഇന്ന് പാർലമെന്റ് അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെയായിരുന്നു സർക്കാർ ഇന്ന് പാർലമെന്റ് തുടങ്ങാനിരുന്നത്. ചർച്ച നടത്താമെന്ന് ഇന്നലെ സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സ്പീക്കർ ഒളിഞ്ഞു മാറി നിന്നു. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിക്കാനുള്ള ആവശ്യം രാഷ്ട്രീയമെന്ന് സർക്കാരാണ് ആരോപിച്ചത്. ഇത് അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിൽ BJP നേതൃത്വം പറയുമ്പോഴും അവരുടെ മുനയൊടിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പാർലമെന്റ് പ്രതിഷേധം. രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം ഇല്ലാതായെന്നും പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചമർത്തുകയാണെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പാർലമെന്റ് അകത്തും പുറത്തും ഉച്ചത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. വിദ്യാർത്ഥികളെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും പോലീസ് തല്ലിച്ചതച്ചുവെന്നും പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുമെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാവിലെ 10:30 പാർലമെന്റ് സമുച്ചയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായിട്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടത്തി. വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് തല്ലിച്ചതച്ചതിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് സമീപം നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പോലീസ് വലിച്ചിഴച്ച ആക്രമണം കാട്ടിയതിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ധർണ നടത്തിയത്. പാർലമെന്റ് അകത്തും പുറത്തും ഇന്ന് നടന്ന ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, കാണാം. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, अभी प्रश्नकाल है. प्रश्नकाल के अंदर सभी माननीय सदस्यों के जो प्रश्न होते हैं उनको बोलने का अवसर दिया जाता है और ये महत्वपूर्ण और सरकार की जिम्मेदारी भी होती है. इसलिए मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल के बाद मैं जिन विषयों पर आपने नोटिस दिया है उन विषयों पर मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ. जितनी देर जितने समय आप चर्चा करना चाहेंगे, उपयुक्त समय आपको चर्चा के लिए मिलेगा. लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है. अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए. मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं. आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी. सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है. संसद के मकर गेट पर विपक्षी दलों के नेताओं का सांसदों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है. काले वस्त्रों में प्रदर्शन और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको विजुअल दिखाते हैं. यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद हैं. काले कपड़ों में, काले कुर्तों में, काले जैकेट में, काले दुपट्टे में, काली साड़ी में. तो यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों के नेता आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार मौजूद हैं. प्रियंका गांधी को देख सकते हैं. संसद के मकर गेट पर विपक्षी दलों के नेताओं का सांसदों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है. काले वस्त्रों में प्रदर्शन और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको विजुअल दिखाते हैं. यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद हैं. काले कपड़ों में, काले कुर्तों में, काले जैकेट में, काले दुपट्टे में, काली साड़ी में. तो यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों के नेता आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार मौजूद हैं. प्रियंका गांधी को देख सकते हैं. संसद के मकर गेट पर विपक्षी दलों के नेताओं का सांसदों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है. काले वस्त्रों में प्रदर्शन और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको विजुअल दिखाते हैं. यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद हैं. काले कपड़ों में, काले कुर्तों में, काले जैकेट में, काले दुपट्टे में. On the issue of need and the student protest.
मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। On the issue of NEET and the student protest. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। On the issue of NEET and the student protest. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। On the issue of NEET and the student protest. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है? क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए। और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं। और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज हैं उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे हैं वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते। वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में।
also attacked in the student protest. Any comment on those journalists because they were simply doing their job, ma'am? Look, it's very clear. We are against violence. We have always been. This is the ideology of our party. It's the ideology of our nation. Mahatma Gandhi fought for freedom. It was a unique revolution in which there was zero violence on their part. And I have heard the protesters and students and all also saying that they are not going to be violent. So if people have got hurt, police people have got hurt, or journalists have also got hurt along with the students, it's unfortunate. But please be truthful when you present it to the public. Because what we are seeing is that the students are being attacked mercilessly. They are being beaten with lathis, they are being tear gassed, girls are being treated in an obnoxious manner, their clothes are being torn off. How do you think they feel that this is their country, this is their parliament, these are their representatives, this government has been voted in by them, and the youth heavily voted for this government? How do you think they feel? They feel completely betrayed. And I'm sorry, but I don't care what all you people say and what you put on the media and what you present. Our duty is to stand with them. Our duty is to raise our voice in their support, and our duty is to fight for our democracy, and we will do it.